ویلکم بیک. بلیٹن کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر سی ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کا آپریشن. پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے. سی ڈی اے حکام نے بتایا ہے کہ سیاسی جماعت کی قائم غیر قانونی تعمیرات کو ختم کیا جا رہا ہے. سی ڈی اے کی جانب سے پی ٹی آئی دفتر کے کچھ حصے کو گرا دیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کو تجاوزات آپریشن میں مزاحمت پر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے بڑے پیمانے پر تجاوزات قائم کی گئی تھیں. بلڈنگ قوانین پر عمل درآمد کرنے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا. پلاٹ مالک کو متعدد بار خبردار کیا گیا تھا اور نوٹسز جاری کیے گئے تھے. 4 سپٹمبر 2023 کو خلاف ورزیاں ختم نہ کرنے پر شوکوز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا اور 10 مئی 2024 کو پلاٹ کو سربے مہر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سی ڈی اے کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو تجاوزات کا آپریشن ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں کہ رویے کی وجہ سے میرے اور بیرسٹر کا آپ کو بتائیں کہ استحقاق مجروح ہوا ہے. پی ٹی آئی رہنما عمر رجوع کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے. آئی جی سے جواب طلبی کریں گے, قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق لائیں گے اور جواب طلب کریں گے. سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق لائیں گے اور ایف آئی آر بھی کٹوائیں گے. شہباز شریف اور محسن نقوی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اس چیز کو ہم لوگ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو, اور جہاں پہ میرا اور یہاں پہ میرے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا استحقاق یہاں پہ مجروح ہے, جو یہاں پہ ان کے سٹاف کے لوگ آج آئے تھے, انشاءاللہ تعالی پریولیجز کمیٹی میں وہاں پہ ان کو طلب کریں گے. آئی جی اسلام آباد کو وہاں پہ طلب کریں گے, کیونکہ جس وقت میں نے یہاں پہ پولیس والوں کو اور سی ڈی اے کے ملازمین کو کنفرنٹ کیا, وہ یہاں سے بھاگ پڑے. تو اس چیز کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف نہ صرف پریولیج موشن لائیں گے بلکہ ان کے خلاف, سی ڈی اے کے خلاف اور اسلام آباد پولیس کے خلاف ان ایکشنز کی وجہ سے ہم لوگ ایف آئی آر ضرور دائر کریں گے. شہباز شریف کو اور محسن نقوی کو یہاں پہ ڈائریکٹ اکیوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, آپ لوگ فیشسٹ ہو اور اس کا خمیازہ آپ کو ایک دن بھگتنا پڑے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے یہ ہمیں اشتعال دلانا چاہتے ہیں لیکن ہم پرامن رہیں گے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایسے حملے کیے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا, مرکزی دفتر سیل کرنے اور گرانے کے خلاف عدالت جائیں گے. اسی مرکزی دفتر کی گری ہوئی دیوار کے ساتھ میٹنگ ہوگی. ہم نے ڈائلاگ کی بھی بات کی, کچھ اور سوچ کر آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندوق ساتھ رکھ کر ڈائلاگ کی بات کی جائے. یہ بلڈنگ نہیں, پی ٹی آئی کا نظریہ ختم کرنا چاہتے ہیں. نوٹس نہیں ملا ہے. رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر یہ اٹیک کرنا یہ بہت غیر آئینی اور قانونی ہے. ہم کل ہی انشاءاللہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ جائیں گے. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. جسٹس سے درخواست ہے, یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. رات کے 12 بجے کوئی نان کنفارمنگ جوز اس قسم کی بلڈنگ کا ختم نہیں کرتے. میں چاہ رہا تھا میں خود یہاں پہنچ جاؤں, لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو. یہ ہمیں اکسا رہے اس بات پہ کہ ہماری طرف سے اشتعال ہو. میری درخواست ہے سب سے کہ پرامن رہے. لیکن یہ بلڈنگ جو ہے, یہ بلڈنگ یہ خان صاحب کی امانت ہے. ہماری عورتوں بچوں پہ اٹیک کرتے رہے, پھر آپ ہمارے گھروں تک آئے, پھر آپ نے چھری چلوائی رؤوف حسن صاحب پہ, پھر آپ ہمارے پاس بغیر وارنٹ کے آپ انٹر ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی تجاوزات نہیں ہے, یہ ہمارا نظریہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمیں سٹاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمیں یہاں کوئی میٹنگ رکھنے سے ڈرا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہمارا چلے گا. جتنی مرضی ہو تسی زیادتی کرو, جتنی مرضی ہو تسی بلڈنگیں گراؤ. آپ بلڈنگیں گرا سکتے ہو لیکن لوگوں کا ریزول آپ ختم نہیں کر سکتے. ہم نے ڈائلاگ کی بھی بات کی, بس 2 چیزیں نہیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں کہ آپ بندوق بھی تانے رکھو, گن کوپڑی پہ آپ چوچو بھی رکھو, اور یہ بھی بات
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी है। जारी इलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अबू धाबी में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तवानाई और पोर्ट ऑपरेशंस में UAE की सरमायाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का इजहार किया है। इस अहम मुलाकात की अमाराती मीडिया ने भी रिपोर्ट करते हुए कहा है UAE ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब की रकम मुख्तस कर दी है। सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात में किया गया है। सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात में पहले वज़ीर आज़म ने अबू धाबी में IT कंपनी से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने कशकोल तोड़ दिया। वो दिन गए जब बरादर मुल्कों में कशकोल लेकर जाता था। UAE के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। I'm here in this great brotherly country not to seek for loans, but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging board. I have broken that board. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने आज अबू धाबी में मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अब्दुल्ला मोहम्मद ने की। वफ़द से बातचीत में वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की इक़्तिसादी तरक्की में चैम्बर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने तिजारत के हजम और दायराकार को बढ़ाने और इसके तनों के इम्कानात तलाश करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के कारोबारी रहनुमाओं को दावत दी है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेपनाह मौक़े खुसूसन तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और IT के शोबों में फ़ायदा उठाएँ। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मज़ीद आपको बताएंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कॉस्टन ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। जर्मन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR ने बताया है जनरल आसिम मुनीर और जर्मनी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलीगन का दौरा भी किया है। सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और फौजी तरबियत पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आर्मी चीफ ने सेंटर में मश्क का मुशाहिदा और तरबियती सहूलों का मुआयना भी किया है। आर्मी चीफ ने जर्मन कौमी सलामती के मुशीर, जर्मन वज़ीर मुमलिकत उमूर खारजा और सेक्रेटरी वज़ारत दिफा ने भी मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन क़यादत ने दहशत के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार की भी तारीफ की है। आर्मी चीफ जनरल आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे। कोर्स में शरीक मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा से खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ इलाकाई और आलमी उमूर और UN मिशंस में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डालेंगे। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेम्ब्रा नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। सहाफ़ती तंजीमों और दरख्वास्त गुजारों ने पेम्ब्रा नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और हतमी फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। पेमरा के बाद हुकूमत ने भी TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया है। हुकूमत ने TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया। और अब बात करेंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं हित्तक इज्जत कानून में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उम्मीद है हित्तक इज्जत कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इम्कान है मैं पंजाब हुकूमत को कानून पर नजरसानी के लिए कहूँ। हित्तक इज्जत कानून मुशावरे से लाया जाता तो अच्छा होता। कानून हरफ आखिर नहीं है। हित्तक इज्जत कानून पर सहाफती तंजीमों और स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे सोलर पैनल पर टैक्स लगाया गया तो ये जुल्म होगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा काशिफ अब्बासी के शो में मियां मंशा का नाम लिया था। गिला आया कि मियां मंशा का नाम ले लिया था। मैंने मियां मंशा के साथ दीगर IPPs वालों के नाम भी लिए थे।
तमाम IPPs वाले खरबों रुपए कमा चुके हैं। आज मुल्क में इमरजेंसी है, ये IPPs वाले कुछ अरब छोड़ते हैं। ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट लगाती हैं, तो मैं कहता हूं फिर तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। थैंक यू। IPPs की बात आपने की, उस दिन मैंने काशिफ के प्रोग्राम में कह दिया, मुझे एक गिला आया जी मियां मंशा साहब के हवाले से कि जी उनका नाम, मैंने कहा मैंने उनका नाम लिया, लेकिन मैंने बाकी दूसरे लोगों के बारे में भी बात की। जितने IPPs वाले हैं ये सब खरबों रुपए कमा चुके हैं। तो अगर खरबों कमा लिए हैं तो आज इस मुल्क में इमरजेंसी है, और तो ये छोड़ देना आप। जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये माल पाकिस्तान से नहीं बना, तो अगर पाकिस्तान होगा तो और माल बना लेना ना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइंदा माली साल का 16 खरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए रखे जाएंगे। 20% फंड बल्दियाती हुकूमतों को देने की तजवीज़ है। ज़म अजला में कोई टैक्स नहीं लगेगा। IMF के मुजवज़ा टैक्स नज़रअंदाज कर दिए गए। और यहाँ पे आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित-बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। तर्जुमान गिलगित-बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फराक के मुताबिक कमेटी वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की सिफारिशात की रोशनी में बनाई गई है। गुज़श्ता माह वज़ीर आला ने मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया, जिस पर 4 वफाकी वज़रा और 3 सूबाई वज़रा भी मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। फाकी वज़रा में मोहम्मद औरंगज़ेब, अमीर मकाम सरदार अवैस अहमद खान लगारी, मुसद्दिक मलिक, और सूबाई वज़रा में इंजीनियर मोहम्मद अनवर, इंजीनियर इस्माइल और फतहुल्लाह खान शामिल हैं। कमेटी 30 रोज़ में अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। आपको बताएंगे कराची के इलाके औरंगी से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP औरंगी का कहना है कि दहशतगर्दों को पहले से गिरफ्तार 2 दहशतगर्दों की निशानदही पर पकड़ा गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तकरीबकारी का सामान, दस्ती बम और असलहा भी बरामद हुआ। कुछ रोज पहले पुलिस ने कोरंगी से रॉ के 2 दहशतगर्दों को और जाबिर को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान से तहकीकात के बाद कोरंगी से शेख मोहम्मद उजूब और SN रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान 1998 से छुपाकर शनाख्ती खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। मुल्जिमान ने तफ्तीश में मजीद भारतीय एजेंट होने का इंकिशाफ किया है। मुल्जिमान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिदायत पर टारगेट किलिंग का भी एतराफ़ किया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में गुलिस्तान जौहर थाने पर 80 से ज्यादा अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोरी का माल खरीदने पर 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार करके लाए थे। मुल्जमान को छुड़ाने के लिए कबाड़ियों के सदर इकबाल वरिंद के सरबराही में हमला किया गया। लाठी चार्ज के बाद हमलावर मुंतशिर हो गए। 6 हमलावर कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा चोरी की दिफात के तहत दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाने पर हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में गिरफ्तार 6 मुल्जमान समेत 80 से ज्यादा नामालूम अफराद शामिल हैं। मुकदमे में हमले में मुलविस मरकज़ी मुल्ज़िम इकबाल वरिंद को भी नामजद किया गया है। और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची में गैर इखलाकी वीडियोस बनाने के इल्ज़ाम में शौहर गिरफ्तार। अहलिया ने शिकायत दर्ज करवाई। इल्ज़ाम लगाया शौहर बैनुल अक़वामी डाक वेबसाइट से मुंसलिक होने के लिए तशद्दुद करता था, गैर इखलाकी सरगर्मियों पर मजबूर करता था। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। बाद वुमेन पुलिस की रिजविया के इलाके में कार्रवाई। ताहिर नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की बीवी ने पुलिस को बताया कि इसका शौहर इसे तशद्दुद करके वीडियोस बनाता और गैर अखलाकी वीडियोस बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स पर अपलोड भी किया करता था। इंटरनेशनल कोई तंजीम है, उसके साथ कोई रिलेशन है, उनकी जो टास्क होती है फिर उसके मुताबिक काम करता है। ये बहुत सारी वीडियो बनाई और अभी जो है ना उन्होंने उसको टास्क दिया हुआ था कि आप अपनी फैमिली की, बच्चियों की दें। इसने अपने वॉशरूम में जो है ना कैमरा लगाया हुआ था। उस कैमरे में इसकी जो हमारे पास विक्टिम है, इसका ये कहना है इसने मेरी बेटी की वीडियो बनाई है। गिरफ्तार मुल्जिम के मुताबिक उसने 2 साल पहले बाथरूम में कैमरा लगाया था, लेकिन वो फिर बंद कर दिया। 1.5 साल पहले एक तंजीम है इल्यूमिनाटी नाम की इंटरनेशनल, उसकी तरफ से एक रैंडम ईमेल मेरे पास आई थी और नीचे लिखा था वी आर वॉचिंग यू। नेक्स्ट उस पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस किए जो कि मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, बस उन्होंने खुद एक्सेस किया। इस तरह की मतलब चीज़ें आने लगी कि अगर आप ये डिफरेंट टास्क हम टाइम टू टाइम देंगे, अगर आप कंप्लीट करते तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट टास्क उन्होंने ये दिया कि आप अपनी किसी वॉशरूम में जो है कैमरा फिक्स करें। तो मैंने कहा कि चलो फिक्स करके देखते हैं कि अब इनका रिप्लाई क्या आता है। मैंने फिक्स जब किया तो विद इन 10 मिनट्स मुझे एक
वेलकम नोट आया और उन्होंने ये भी कहा कि यू आर सक्सेसफुल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने इल्जाम लगाया कि ताहिर अपने दोस्तों के साथ गैर अज़वाजी ताल्लुकात रखने के लिए दबाव डाला करता था। इनकी वाइफ ने कहा है कि अपने फ्रेंड्स को भी मुझे पेश करता था। पुलिस मुलजिम से बरामद होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन का फॉरेंसिक करा रही है। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम के मोबाइल रिकॉर्ड में कई बैनुल अक़वामी नंबर्स भी सामने आए हैं। कैमरामैन नुमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में रेड़ी बांध पर तेजाब फेंक दिया गया। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रेड़ी बांध पर उसके भांजे ने तेजाब फेंका। पास खड़ी बच्ची जद में आ गई। पुलिस हुकाम ने बताया 10 साला बच्ची रेड़ी बांध को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम शाहिद का अपने मामू से घरेलू तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। दादू सिब्बी में पारा 50, नवाबशाह सक्खर मिठी में 49, बहावलपुर में 48, मुल्तान में 47, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और कोयटा समेत बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहेगी। कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, दीर, सवात में चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्के है। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगे। जिना अस्पताल में 10 दिनों में शदीद गर्मी से मुतासर 70 से ज्यादा अफराद को लाया गया, जिनमें 10 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए थे। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। कराची में गर्मी का राज बरकरार, मौसम की सख्ती से शहरी होने लगे बीमार। पारा बढ़ा तो अस्पताल में हीट स्ट्रोक के केसेस में इजाफा होने लगा। जिना अस्पताल में जुमेरात के रोज 3 केसेस रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक मरीजों को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। मेरे पास जो तादाद है, जो डेटा है, वो 70 से 80 पेशेंट्स का है जो पर्टिकुलरली हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। उनमें से 70 पेशेंट जो थे हीट एग्जॉशन के थे, वो उसकी माइल्ड कैटेगरी होती है, और 10 पेशेंट जो थे वो हीट स्ट्रोक के थे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि बिला जरूरत घर से निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल मामूल से ज्यादा करें। दूसरी जो चीज़ें अवेयरनेस वाली, मीडिया ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं तो पेशेंट्स अभी कम आ रहे हैं। जबकि मजमूई तौर पर 10 दिन के दौरान 70 से ज्यादा अफराद गर्मी की शिद्दत से मुतासर होकर जिना अस्पताल लाए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे सक्खर की शदीद गर्मी में शहरी ठंडे पानी से भी महरूम। लोड शेडिंग की वजह से बर्फ मिलना दुश्वार, बर्फ फरोशों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। नासिर जाफरी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में शदीद गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे नासिर खान। हैदराबाद के शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए ट्यूबवेल का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी ट्यूबवेल के पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत को भगाने में मसरूफ। पापा के साथ आए 12 पे ठंडे ठंडे पानी में नहाना। सूरज का गुस्सा थमने को तैयार नहीं और पारा 45 तो कभी 47, जबकि शहर में लोड शेडिंग से तंग बच्चे ट्यूबवेल पर नहाकर खुश हैं। शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। लाइट आए न आए, बच्चों को तफरी का बहाना चाहिए। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़ हैदराबाद। तो सिंध को काफी अरसे तक टारगेट किया गया है। साजिश के तहत सूबे से सनतें बाहर मुंतकिल कराई गई हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांसलेट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं CPEC में शामिल धाबेजी इकोनॉमिक जोन लैंड मार्क होगा। सनतें लगाने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करने वाले ड्यूटी नहीं देंगे। निगरान दौर में क्राइम बढ़े, अब 50% कमी आई है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की FPCCI आमद। ताजरों से खिताब में बताया कि धाबेजी इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं जहां सनतों को मशीनरी पर टैक्स फ्री होगा। ये मंसूबा गेम चेंजर और CPEC में भी शामिल होगा। मजीद लोग जो है उनको रागिब किया जाए, वो लोग यहाँ पे अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाएं। हर हुकूमत की ये प्रायोरिटी होती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। आज अगर आप देख लें, पिछले 1 महीने से अगर मवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि लोड शेडिंग के नाम पर कराची की आवाम को इज्तिमाई सजा देना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। इन सारी इलेक्ट्रिक कंपनी को कहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है कि वो कहें कि अपना ये किबला दुरुस्त कर दें, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता कि मनमानी करें। यही कमा रही हैं ये कंपनियां, लेकिन दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चा करने के लिए लोग तैयार नहीं है। मुलाकात के दौरान FPCCI ने सिंध हुकूमत से इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और इंडस्ट्रियल मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जहीराबाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची।
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں جدت لانے کے حوالے سے کراچی میں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمد صلاح الدین۔ جدید دور میں ترقی کا سفر جاری۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں جدت لانے کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں چائنا کے کونسل جنرل سمیت مختلف شعبہ جات سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروموٹ کریں انوویشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹرز میں۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر عطا الرحمان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدت صرف آن لائن شاپنگ تک ہی محدود نہیں، بلکہ جناح اسپتال میں سائبر نائف کا شعبہ اور روبوٹک سرجری کی جدید طریقہ علاج کی مثال ہے۔ کانفرنس میں مقررین نے زور دیا کہ نوجوان نسل کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال اور اثرات کی جانب راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین محمد محسن کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں کونسل جنرل ترکیہ محمد پکاشی کا کہنا تھا کہ ترکی 13,000 پاکستانی طلبہ کو تعلیم کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ تفصیلات چاند نواب کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی پریس کلب کی دعوت پر ترکیہ کے سفیر محمد پکاچی کا پریس کلب کا دورہ۔ ترکیہ کے سفیر نے صحافیوں کی جانب سے بلائے جانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ We have historical relations. Our relations encompass culture and faith, and they have played a pivotal role in shaping our relationship. اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے سامنے بھی پاکستان اور ترکیہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ Academics from Turkey and Pakistan will study deeply this history further. اس موقع پر کراچی پریس کلب کے صدر سعید سربازی، سیکرٹری جنرل شعیب احمد بھی تقریب میں شریک تھے، جبکہ صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ جہلم سے آبائی تعلق رکھنے والے برٹش پاکستانی سیاستدان نے دیار غیر میں وطن کا نام روشن کیا ہے۔ لیبر پارٹی کے طارق ڈار لندن کی اہم کونسل برینٹ کے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے فرید قریشی۔ لندن کی اہم بارو برینٹ نے پاکستانی نژاد سیاستدان طارق ڈار کو میئر منتخب کیا ہے۔ طارق ڈار کا آبائی تعلق جہلم سے ہے اور وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کمیونٹی کی خدمت میں مصروف اور سیاست میں متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ میئر میکنگ سیریمنی میں مقامی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ میئر طارق ڈار نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ جتنے بھی برانڈ میں بزنسز ہیں ان کی پروموشن کے لیے، پاکستانی بزنس کی پروموشن کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں۔ سیریمنی میں شریک مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سید قمر رضا، لیاقت علی اور کونسلر محمد محبوب نے میئر طارق ڈار کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ طارق ڈار صاحب نے صحیح معنوں میں برٹش پاکستانی کمیونٹی کو اور برٹش کمیونٹی کو ہمیشہ دل سے سرو کیا ہے۔ میرا تعلق کنسرویٹو پارٹی سے ہے لیکن میں ان کے کام سے بہت ہی مطمئن ہوں۔ Really looking forward to his year. He's the best person for this, especially for Brent, and wish him all the best. تقریب میں ساجد خان اور دیگر کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ ایسا نام جو کہ کمیونٹی کے آلریڈی لیڈر ہیں، ہمارے لیے بہت ہی خوشایند بات ہے کہ وہ میئر بن رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی کی بات۔ یہ میئرشپ ان کو ملتی یا نہ ملتی، ان کا یہ ایک سوچ ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے کمیونٹی کے لیے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ طارق ڈار صاحب کا میئر بننا ہمارے پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے۔ شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ طارق ڈار علاقے کے لوگوں کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ انہیں مزید سہولیات فراہم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ ARY بی گلوبل اور بدر ایکسپو سولوشن کے تعاون سے ایکسپو سینٹر کراچی میں ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس منعقد کی گئی۔ 3 روزہ کانفرنس کے آخری روز بھی ARY بی گلوبل کے اسٹال پر شہریوں کا رش رہا۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ صحت مند پاکستان کا خواب اب پورا ہونے کے قریب، شہریوں کو صحت کی سہولیات بآسانی ملیں گی تو ہی ملک ترقی کرے گا۔ ARY بی گلوبل اور بدر ایکسپو سولوشن کے تعاون سے لگی ایکسپو سینٹر میں ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس شہریوں کی توجہ سمیٹ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ARY نے، بی گلوبل نے، ایڈوانس لیب نے، ایزی شفا نے مل کے جو انیشیٹو لیا ہے، اس کی ایڈوکیسی کا بہت بھرپور موقع ملا اور ہم حیران ہیں
کہ لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے. ARYB گلوبل نے پرووائڈ کی ہیلتھ کیئر اویئرنیس, لوگوں میں اویئرنیس آئی, لوگوں کو پتہ چلا کہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں, پبلک کو اویئرنیس ہو کہ ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ کے کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. نمائش میں تینوں دن ARYB گلوبل کے اسٹال پر شہریوں کا جمع غفیر نظر آیا. شہریوں نے صحت کے حوالے سے ایزی شفا اور ایڈوانس لیب سے مفت ٹیسٹ کرائے. وہیں دبئی اسلامک بینک کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز نے پرکشش آفر سے خوب فائدہ اٹھایا. ہماری بہت اچھی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ARYB گلوبل کے ساتھ, اور ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایونٹس میں بھی. بزنس میچ میکنگ میں اور ٹریڈ کی پروموشن میں ہیلتھ کیئر کی اسپیشلی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. ایکسپو سینٹر میں ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس عوامی توجہ اور پذیرائی کا درجہ حاصل کر گئی. ARYB گلوبل کی جانب سے صحت مند پاکستان کا یہ مشن مسلسل جاری رہے گا. کیمرامین عماد ریاض کے ساتھ اشرت خان, ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.